اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید دانیال حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہے اور پسند آ رہی ہیں تو میرے یوٹیوب چینل اچیور ڈاٹ دانیال کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ آج میں نے اپنے اسٹوڈیو اینٹی اسٹریٹ کرائم فورم میں جن شخصیت کو دعوت دی ہے، آپ لوگوں کا بڑا جو تھا اس پہ پرسرور زور تھا کہ آپ ان صاحب کو بلائیں، اور آج میں نے اپنے اینٹی اسٹریٹ کرائم فورم کراچی کے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب ہمارے اور آپ سب کے ایم پی صاحب واجد حسین صاحب۔ کیسے سر آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا بھائی کیسے گزر رہی ہے آپ کی؟ شکر الحمدللہ۔ پہلے تو سر میں مبارکباد دے دوں کہ میں نے کچھ دن پہلے ویڈیو دیکھی تھی آپ کا، ماشاءاللہ سے بہت بہت مبارک ہوا، آپ کا نکاح ہوا ہے۔ اچھا واحد بھائی، جیسے آپ کو بھی پتا ہے آپ بھی لانڈی کے ہیں اور میں بھی لانڈی کا ہی ہوں نا، تو اس سے پہلے بڑے لوگ آئے، بڑے وعدے کیے، وہ کیے۔ ابھی آپ کو جب سے آپ نے ایز اے ایم پی اے جو ہے جوائن کیا ہے، تو آپ اس لانڈی کے لیے کیا کر رہے ہیں سر؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ بہت سارے لوگ آئے اور چلے گئے۔ دیکھیں جی، میں نے ڈے 1 سے لے کے جب سے میں صوبائی اسمبلی میں پہنچا ہوں، پہنچ کر میں نے جو ہے وہ ہر فورم پہ سب سے پہلے میں نے اپنے لانڈی کی عوام کا شکریہ ادا کرا ہے کہ انہوں نے مجھے مڈل کلاس طبقے سے اٹھا کے ایوان میں بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو لانڈی کی بنیادی جو چیزیں تھی، جیسے سب سے بنیادی اگر ہم سمجھتے ہیں اس وقت، تو ہمارا پانی کا مسئلہ۔ بالکل ایسا ہی۔ پانی کے مسئلے کے لیے فرسٹ اسپیچ، اس لیے آپ کو بتا دوں کہ ریکارڈ کا حصہ ہے، جی فرسٹ جو میری اسپیچ تھی صوبائی اسمبلی کے اندر، وہ میں نے کی پانی کے اوپر۔ اچھا، پانی کے اوپر میں نے وہاں کے حکمرانوں کو جو ہے جگایا، حکومت کو جو ہے وہ نیند سے جگایا کہ جی میرا حلقہ لانڈی ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ پسماندہ ہے، مزدور پیشہ طبقہ یہاں پہ رہتا ہے، اور جب لوگ صبح میں جو ہے مزدوریاں کرتے ہیں اور رات میں آنے کے بعد وہ بیچارے پمپنگ اسٹیشنوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پانی کی لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، اور کسی کو پانی مل جاتا ہے، اور کئی جو ہے نا بڑی تعداد میں آبادیاں ایسی ہیں جہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو الحمدللہ میں نے اس پہ بات کری، اس کے بعد جو ہے وہ اے ڈی پیز کے کام ہوئے لانڈی میں پانی کی لائنوں پہ، جی جو کہ پرانی اے ڈی پی اسکیمیں تھیں، اس کو جو ہے اس کے لیے محنت کری، کیونکہ یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ کاغذوں میں فنڈ ختم ہو جاتا ہے، تو جو فنڈ حکومت نے یہاں پر رکھا ہوا تھا اے ڈی پی کا، اس کے ذریعے پانی کی لائنیں ڈلوائی۔ تو کافی بڑا علاقہ لانڈی کا میرا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ پانی کے جو مسائل تھے ان کے حل ہو گئے، لیکن ابھی بھی مسائل پانی کے ہیں، میں انشاءاللہ اس کے لیے بھی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا وہی بات میں آپ کو کر رہا تھا، ابھی پچھلے دنوں میں نے پانی سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو کری تھی، تو اس پہ بڑے لوگوں نے میری ویڈیو پہ کمپلین کری کہ کیریا میں پانی نہیں ہے۔ لانڈی 36B کے اندر آپ نے خود آتے جاتے جال دیکھا ہوگا، بیچارے فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھ کے موٹریں لگا کے، اور پائپوں کا جال ہے۔ بالکل۔ تو ابھی بھی لوگ پانی کے لیے پریشان ہیں، لیکن ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے یہ اناؤنس ہوا تھا کہ یہ جو واٹر ہائیڈرینٹ ہے یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ ختم تو نہیں ہوئے، یہ آج بھی ویسے ہی چل رہے ہیں۔ جو ایک ہمارے ایریا میں ہے جو پیچھے آپ کو پتا ہے چھوٹی مارکیٹ کی طرف، وہ تو ویسے ہی چل رہا ہے۔ دیکھیں ہائیڈرینس کے حوالے سے بھی میں نے اسمبلی کے اندر سوال جو ہے وہ کیا تھا، منسٹر جو لوکل گورنمنٹ ہیں جن کے ہینڈ اوور یہ تمام چیزیں آتی ہیں، ان سے میری اس بارے میں بات ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو آپ کے ہائیڈرین ہے، جو ہمارا لانڈی والا ہائیڈرین فیوچر ہے، اس کے علاوہ 7 ہائیڈرین کراچی کے ایسے ہیں جن کو لیگلائز کرا دیا، یہ لیگل ہائیڈرین ہے، سپریم کورٹ کی اس کے اوپر ججمنٹ ہے کہ یہ جو ہے چلیں گے، کیونکہ اس کا سوال انہوں نے کچھ اس طریقے سے اس کی کلیریفیکیشن دی کہ کئی آبادیاں کراچی کی ایسی ہیں جب واٹر کا سسٹم نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہائیڈرین ہے ہم ان کو ٹینکروں کے ذریعے جو ہے وہ پانی دیتے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ واٹر بورڈ کی ارننگ بھی اس وقت ہائیڈرین، اگر میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ ہمارے یہاں عوام بڑی تعداد میں پانی کا بل پے بھی نہیں کرتی۔ اچھا عوام بیچاری کیا کرے، ظاہر سی بات ہے ان کو ضرورت تو پانی نہیں ملتا، تو جب اگر ان کو پراپرلی پانی ملنا شروع ہوگا، تو جیسے کہ الیکٹرک کا بل پیڈ ہو رہا ہے، دیگر جو بل پیڈ ہو رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پانی کا بھی ہوگا، لیکن کیونکہ پانی کا پریشر کم کیا ہوا، ہائیڈرینس کو پانی پورے ملتے ہیں، علاقوں کو ملتے نہیں ہے، تو یہ ساری وجوہات ہے اس میں۔ اچھا واجد صاحب، جیسے ابھی آپ نے پانی کا بتایا، اسی طرح اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں لانڈی کے نا، جس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے آپ کو پتا ہے انفراسٹرکچر، ہمارے روڈ، بجلی، ایجوکیشن، تو اس پہ آپ کا کوئی ہے فیوچر پلان یا کوئی پائپ لائن میں چیزیں ہیں جن کو آپ ان فیوچر ایکسیکیوٹ کریں گے؟ دیکھیں میں یہاں پر ایک بات تو کلیئر یہ کروں کہ ہم نے اپوزیشن کے نمبر، جی ظاہر سی بات ہے میرا جس پارٹی سے تعلق ہے، میں اپوزیشن کے اندر ہوں، حکومت سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، بلدیاتی نظام بھی ان کا ہے، بائی گورنمنٹ بھی ان کی ہے، تو جو لانڈی کے مسائل پہ جیسے آپ نے سوال کیا انفراسٹرکچر کا، روڈوں کا خاص کر کے، تو ہمارے پاس جو بڑے روڈ آتے ہیں، ایک آتا ہے 12,000 روڈ، ایک آتا ہے 362 روڈ، ایک آتا ہے 10,000 روڈ۔
अच्छा, इनकी रिकॉर्डेड स्पीचेस मौजूद है असेंबली में कि मैंने बाकायदा रोड्स के नाम लिए। उसके ऊपर हुकूमत सिंध ने रोडों के ऊपर 2 रोड 362 वाला और 10,000 रोड इस पर इन्होंने काम करवाना शुरू कर दिया है। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस दिन वो रोड कंप्लीट होगा मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज से मेरे इलाके के लोगों को सहूलत दी। इसके अलावा जो नाले हैं यहाँ पर कई नालों की दीवारें नहीं है जिसकी वजह से हादसा हो जाते हैं, गटर के ढक्कन नहीं है, तो इसके ऊपर भी मैंने वहां पर बात करी है असेंबली फोरम पे। और अभी तक तो मुझे यकीन दहानी कराई गई है कि हम जो है वो इस बजट में आपकी ये तमाम तर रिलीज जो है वो हम रखेंगे और इंशाल्लाह ये काम करना है। तो ये बात आपको कहने का मकसद ये है कि हमें कोई करंट बजट नहीं मिलता। अच्छा। आज तक जब से मैं एमपीए बना मुझे कोई 1% का करंट बजट नहीं मिला। हम क्या करते हैं कि हम अवामी जो सवाल होते हैं, अवाम की जो उम्मीदें हैं मुझसे खास करके उनका नुमाइंदा मैं सुबह ही असेंबली में उसको एज इट इज पेश करता हूँ कि ये मेरे लांडी के लोग हैं। ऐसी बात है सिंध में जो जो हल्के टैक्स पेड करते हैं उसमें मेरा इलाका भी है। बिल्कुल मेरी लांडी की आवाम टैक्स भी दे रही है, बिल भी दे रही है, हर चीज दे रही है। इनका भी हक है कि ये खुशहाल जिंदगी अपने हल्के में गुजारे जिसमें इनको बिजली टाइम पे मिले, पानी मिले, इनको रोड अच्छे मिले, इनके अगर नाले हैं बरसाती तो उस पर दीवारें होनी चाहिए। बिल्कुल तो मैं इंशाल्लाह जो जो मसाइल है इसको असेंबली में उजागर करता रहूंगा अपने लोगों के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज मैं आपको और बता दूं कि सबसे मेन बात ये कि मेरी रिहाइश लानी ये जी ठीक है। मैं यहीं से इलेक्शन लड़ा, उसी घर से मैंने इलेक्शन लड़ा, जमानाबाद लांडी 4 पे मेरा घर है और आज भी मैं उसी घर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र महसूस करता हूँ कि मैं लांडी वाला कहना असेंबली में। वरना अक्सर आप देखें तो यहाँ की एक लांडी की हिस्ट्री रही है कि इलेक्शन से पहले उम्मीदवार लाठी वाले होते हैं, इलेक्शन जीतने के बाद वो डिफेंस वाले होते हैं। डिफेंस वाले होते हैं। बिल्कुल मैं अपने लोगों के दरमियान हूँ और लोगों से मुलाकातें भी करता हूँ। आप ही की बात से आगे कंटिन्यू करूंगा। वजह साहब आपने जैसे बोला कि आप लांडी वाले हैं, लांडी में रहते हैं और लोगों को मुझे फकर भी है और आप लोगों को उम्मीद भी है आपसे। तो आपने ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया है कि एक आम आदमी, एक ले मैन जो है वो अपनी कोई भी अगर उसकी कंप्लेन है या कोई शिकायत है तो वो आप तक दस्तरस हासिल करने के लिए कोई ऐसा आपका ऑफिस हो या जैसे एक कचेरी लगती है ना कि भाई आप यहाँ इतने बजे से इतने बजे तक यहाँ मौजूद होते हैं तो वाजिद साहब से आके मिला जा सकता है आम आदमी, जिसमें से आप और पब्लिक मतलब किसी की कोई अपॉइंटमेंट लेना ना हो, आप लोगों के मसले सुने और इस तरह से है कोई ऐसा मैकेनिज्म? अच्छा मैं इसके ऊपर ये कह दूं कि मेरा एक फोन नंबर है, वही फोन नंबर मेरा व्हाट्सएप पर है, वही फोन नंबर मेरा कॉल के ऊपर है। ठीक है। अच्छा वो नंबर मैं पिछले कोई 15 साल से यूज कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा तो नंबर भी मेरा वही है अल्हम्दुलिल्लाह जो लांडी के लोगों के पास मौजूद है। अच्छा वह आसानी लोग मुझे कॉल करते हैं और मैं कॉल पिक करता हूँ और मैं उनके मसाइल के लिए या तो खुद पहुंच जाता हूँ। मैं समझता हूँ कि मुझे अगर बुलाया जा रहा है तो मैं खुद पहुंच जाता हूँ, नहीं तो इसके अलावा मैं 362 रोड पर जो टी पॉइंट जो बने हुए हैं, चाय के होटल जो बने हुए हैं, मैं शौकीन हूँ इस चीज का। अच्छा मैं वहां पर लाजमी 2 से 4 घंटे रोज की बुनियाद पर लांडी में बैठा होता हूँ जिसमें काफी सारे लोग मुझसे आते हैं, बआसानी मुझसे मिलते हैं, मुझे अपने मसाइल बताते हैं और अच्छी एक गैदरिंग रहती है। फिर आपने कहा ऑफिस, तो ऑफिस मेरा 36 भी जो नाबीना स्कूल है इसके बिल्कुल सामने व्हाइट मस्जिद है, यहाँ मेरा एमपी ऑफिस है। तो यहाँ भी लोग जो है वो आते हैं और सबसे मेन बात तो ये है ना कि मेरा घर है। हाँ मेरा घर लांडी में है और मैं एक नॉर्मल घर में रहता हूँ, बंगला शुंगला है नहीं मेरा कोई। तो जब मैं घर से नीचे उतरता हूँ अपनी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ कोई ना कोई मुझसे रोज की बुनियाद पर वैसे भी मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह और कोशिश करते हैं पूरी की जो मैंने अपनी पूरी टीम बनाई हुई है जिसमें मेरे फोकल पर्सन है, मेरे कोऑर्डिनेटर है, मेरे दीगर लोग हैं, तो उनको भी मैंने कहा हुआ है कि जो भी बंदा मुझसे मिलने का कहता है आपने मुझसे इजाजत भी नहीं मांगनी है, आपने मेरे को उसको मेरे पास लेके आना है और ये हमारा हक भी है, हमारा फर्ज है। अच्छा वाजिद भाई आखिरी सवाल एजुकेशन पे आ जाते हैं कि आपको पता है लाठी के जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका बड़ा बुरा हाल है ना। जैसे आपको पता है पढ़ाई का मतलब हो सकता है इन्फेक्शन में थोड़े से बेहतर हो, हाई स्कूल बल्कि स्कूल ये जितने भी स्कूल थे, तो कभी मौका लगा आपको कि आप असेंबली के फोरम के ऊपर लाठी के एजुकेशन के हवाले से भी आप कोई आवाज उठाएं और यहाँ के जो तालिम है उनके लिए कुछ आवाज? देखिए 2 दफा मैंने जो है वो लांडी के सबसे पहले मैंने क्या करा, फोटेज मौजूद है मेरे ऑफिशियल पेज पर, वाजिद हुसैन खान मेरा ऑफिशियल पेज है, उस पर आप जाएंगे तो आपकी सारी तफसीलात मिलती है। और मैं आपकी जो है वो चैनल के तवज्जुह से लांडी वालों को भी कहता हूँ कि वो मेरे टिकटॉक पर जाए, मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक या मेरे फेसबुक पेज पर जाएंगे तो इंशाल्लाह तमाम एक्टिविटीज के बाद मिलती है। मैंने क्या करा, मैंने एक दिन पूरा मुकर्रर किया जिसमें मैंने लाठी के तमाम सरकारी स्कूलों का विजिट किया, जाके मैं अमले से मिला, टीचर से मिला, उनके मसाइल को सुना। उसके बाद मैंने एज इट इज असेंबली के अंदर ये आवाज
उजागर की। तो इसके ऊपर मुझे जो वजीर है, जो हमारे एजुकेशन के तालीम के जो वजीर है हमारे सरदार साहब, उनसे मेरी बातचीत भी हुई। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि जो आपके लाडी के एजुकेशन के मसले हैं, इंशाल्लाह हम इस बजट में इसको रखेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हम आपको 3 से 4 स्कूल लाडी के आपके नाम पर करें, उसको आप एडोप्ट करें इन स्कूलों को। ठीक है, उनका हम ऑफिशियली लेटर भी निकालेंगे, ताकि जो 4 स्कूल एफपीएस आप देख रहे हैं वो आपकी पूरी निगरानी रहेगी, उसमें क्या बजट लग रहा है, उसकी जो भी उसका उसकी एसओपी से वो आप बनाएंगे, तो वो 4 स्कूल बड़ी बात होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कहा कि जी हमने अपने जो हमारे सरकारी ऑफिसर है हमने उनको भी कहा हुआ है कि एजुकेशन पे खास करके जो है वो काम कर। लेकिन मैं फिर यही बात करता हूँ कि देखें, आप हमसे वादे ना करें। बिल्कुल 17 साल के करीब हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कराची सिंध के अंदर, तो हमें तो ये जो एजुकेशन के मसाइल है, पानी के मसाइल है या दीगर जो मसाइल है, ये हमारे बुनियादी मसाइल हैं। इस जदीद दौर के अंदर अगर मैं बैठ के हुक्मरानों से ये कहता हूँ कि जी हमारे स्कूलों की दीवारें टूटी हुई, तो मैं समझता हूँ कि ये जुल्म है आवाम के साथ और शर्म का मकाम है, क्योंकि ये तो बुनियादी हक है ना। मतलब दुनिया चांद पे पहुंच गई और हम हाँ, अभी तक और हम जो है वो पानी मांग रहे हैं, नाले में दीवारें मांग रहे हैं, रोड टूटे हुए हैं हमारे, बिजली। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ये काम खुद ही कर लेने चाहिए। ये बेसिक नीड्स है, बेसिक नीड्स है और माशरे का हिस्सा है। माशरे का। अच्छा भाई एक आखिरी सवाल जो बड़ा चुभता है मुझे भाई, वो ये है कि कुरंगी वालों ने बड़ी एक बेहतरीन किस्म की हाई टेक जो है स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी एक आईटी लैब बनाई है, जिसके अंदर वहां पे कुरंगी के बच्चों को वो फ्री आईटी तालीम दे रहे हैं। तो इस तरह की लैब हम लांडी वालों को कब मिलेगी? देखिए जी, लांडी वालों का सबसे मेन मसला, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपके सवाल के साथ चलते हुए उससे हटके थोड़ी सी मैं बात कर लूँ। बल्दियाती निज़ाम है लांडी का जमात इस्लामी के पास, ठीक है। अच्छा, मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने अभी तक अपना टोटल जो फंड है वो सेव किया था, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने कहा कुरंगी का, तो कुरंगी वालों के, कुरंगी और शाह फैसल ये अलग अलग जो है वो टाउन है जी जी, और तहसील है, ये अपना फंड जो है वो लगा रहे हैं। अच्छा, मैं जमात इस्लामी से मेरा हमेशा यही सवाल होता है, वो कहते हैं जी हम करेंगे। 2.25 अरब जमात इस्लामी के पास लानी टाउन में सेफ अभी तक रखे हैं उन्होंने, काम उन्होंने कोई नहीं कराया। तो ये जो आप प्रोग्राम कह रहे हैं, ये टाउन चेयरमैन की एक जिम्मेदारी होती है कि उसके पास अ, सरकारी दफातर भी मौजूद हैं, सरकारी वसाइल भी मौजूद है, पैसा भी मौजूद है और इख्तियारात भी मौजूद है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक एमपीए और एक एमएलए, एमपीए के पास एक गटर का ढक्कन लगाने के भी इख्तियार नहीं। इसलिए आपको कह रहा हूँ कि वीडियो का आपका हिस्सा बने। गटर का ढक्कन का इख्तियार नहीं है, टैक्स कलेक्शन जो होती है, रेडी पकारे बाजार दीगर जो चीजें हैं, इनकी एनओसीज जारी होती है, तो उनके इख्तियारात भी टाउन चेयरमैन के पास होते हैं। तो जब ये मंथली फंड कलेक्शन होती है हर एक डिपार्टमेंट की, तो ये टोटल पैसा भी टाउन के चेयरमैन की जो अकाउंट में जाता है, जिसको सेक्रेटरी टाउन और चेयरमैन दोनों का ज्वाइंट सिग्नेचर होता है, वो पैसा नहीं करता है। तो मेरी गुजारिश है कि जो बल्दियाती नुमाइंदों के जो काम होते हैं वो करें, अपने टाइम से पहले पहले करें, सियासत की नजर ना। असल में सर आपको बोलने का मकसद सिर्फ ये कि एक पावरफुल वॉइस है आपकी, जाहिर बात है असेंबली के फ्लोर पे भी आपकी वॉइस सुनी जाती है और आप वहां बोलते भी हैं। इसलिए सर आखिरी सवाल बस आपसे कि मैं पिछले कुछ दिनों से ये देख रहा हूँ कि जिसका जहां दिल चाह रहा है वो रोड खोद रहा है और वहां से पानी की लाइन ले रहा है। ये बहुत ज्यादा जो है ये बड़ा कॉमन है, तो उस पे इदारे या इसका जो वाटर बोर्ड है वो कोई एक्शन या क्यों नहीं लेते? सर देखें, कानून के अंदर कुछ अमेंडमेंट की जरूरत है जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी भी था। हाँ मेरे जहन में नहीं, लेकिन आपने किया। कानून में अमेंडमेंट की जरूरत है। हमने जिस वक्त ये गड्ढे खुदना शुरू होते हैं या ये लाइनें इलीगल कनेक्शन को कहते हैं, जब ये होना शुरू होते हैं, तो मेरा पहला काम होता है कि मैं वाटर बोर्ड को कॉल करता हूँ। ठीक है, अच्छा, जब मैं वाटर बोर्ड के एक्सीएन को लाता था, कॉल करता हूँ मैं इनको। जब मेरी उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि वाजी साहब हम तो टाइम पर पहुंच रहे हैं, बस आप मेहरबानी करें मकामी थाने को बता दें। अच्छा, जब मैं मकामी थाने से बात करता हूँ, एसएचओ हैं या टीएसपी जो हैं, वो ये कहते हैं कि भाई आप जो हैं वो वाटर बोर्ड के एम्प्लॉइज को बोले कि वो थाने आए और अपनी मुद्दत में एफआईआर नोट करवाए। तो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट की हटदर्मी ये है कि वाटर बोर्ड का कोई भी एम्प्लॉय एफआईआर कटवाने के लिए आगे नहीं बढ़ता। बस ये रात के अंधेरे में कनेक्शन होते हैं, जाहिर सी बात है, देखिए हम भी समझदार है, हमें भी पता है इसमें पैसे पुलिस को भी जाते हैं, इसमें पैसे वाटर बोर्ड को भी जाते हैं। तो मैंने मिनिस्टर साहब को लिख के दिया था, वजीर बल्दियात को, मेरी इस पर भी स्पीच मौजूद है, इनलीगल कनेक्शंस के लिए मैंने खास करके स्पीच करी थी असेंबली में। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई में ये कहा था कि मैं इंशाल्लाह इसको देख रहा हूँ और मैं एमडी वाटर बोर्ड से कहूंगा कि जहां पर भी इनलीगल कनेक्शन होता है वहां आपकी मुद्दत में एफआईआर कटनी चाहिए, क्योंकि देखिए आवाम शिकायत कर सकती है। आवाम
FIR नहीं लॉन्च करवा सकती। इधर भी मतलब अगर कोई बदमाश है, कोई सियासी बदमाश है, कोई दो मतलब इस किस्म की कोई पर्सनैलिटी है, तो पब्लिक कम से कम हमारी उस पर फेस नहीं करती। तो इदारों का काम है कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको पूरा करें। FIR, एक FIR भी नोट होगी, मैं आपको बता दूं, 1 से 2 FIR अगर इलीगल कनेक्शंस के ऊपर हो गई, मैं यहाँ पर MP बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि फिर बेटा कूदते हुए लोग सोचें, 10 दफा सोचे। अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते हुए आप लांडी वालों को और आम लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आपके फ्यूचर के प्लान क्या हैं और आप क्या करने वाले हैं? कुछ मैसेज है तो आप। मैं अपनी लाठी की आवाम का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझ पर एतमाद किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इलेक्शन जीत के आपके दरमियान हूँ और इंशाल्लाह जो मेरा टेन्योर है मैं आपके दरमियान रहूंगा। और जो लाठी के मसाइल हैं वो ये ना समझें कि वो आपके मसाइल हैं, वो मेरे मसाइल हैं। अगर इस रोड के ऊपर आप चलते हैं, रोड टूटा हुआ है, तो मैं भी इसी रोड के ऊपर चल रहा होता हूँ। यही नाले होते हैं, मेरे भी बहन भाई, मेरी भी फैमिली इसी इलाके में रहती है। तो मैं इलेक्शन जीतने के बाद डिफेंस वाला नहीं बना, मैं आज भी लाठी वाला हूँ और मैं लाठी वाला ही बन के आपके मसाइलों को इंशाल्लाह जो है मैं असम्बली में उजागर भी करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि हुकूमत से आपके लिए तरक्याती स्कीमें लूं और इंशाल्लाह उसके ऊपर जो है वो काम करवाऊं, ताकि लांडी वाले मुझ पर दोबारा एतमाद करें। इंशाल्लाह जब मैं आपके पास जनरल इलेक्शन में आऊंगा तो कम से कम आप मुझे ये नहीं कह सकते कि आपको आते ही नहीं है, आप हैं कौन। इंशाल्लाह ये सवाल नहीं है। थैंक यू वेरी मच वाहिद हुसैन साहब। आज मुझे और वाहिद साहब को एंटी स्टेट क्राइम फोरम कराची के स्टूडियो से इजाजत दीजिए। देखते रहे मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज।